वेलकम टू स्पेन जोन अकेडमी। हमने पिछला लेक्चर में बात किया था लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या सब पढ़ लिया। देयर आर टू टाइप्स लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन वुमेन्स। Nutrition is women are omnivorous. They can eat plant-based food as well as animal-based. Women are omnivorous. We will know women are omnivorous. They can eat food as well as plants or animal. Beings more complex. Women are very complicated nutrition system. The digestive system as an alimentary canal and associated digestion gland, which together function as nourish the body. There are 5 stages in women nutrition, that is injection, digestion, absorption, assimilation, ejection. 4 stages, that is injection, digestion, absorption, ejection, takes place in the alimentary canal, while assimilation of food takes place in the whole body. I will discuss about alimentary canal. Alimentary canal in human beings is also a long tube. Alimentary canal is a long tube of varying diameter. There are many types of diameter, no fixed diameter. It starts with the mouth and be in with the anus. ये माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है, जिसमें ओसोफेगस आता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो जाता है ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Then we will discuss about mouth. Mouth. What is mouth? It is the opening of the alimentary canal and helps in the injection of food. ये एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग पार्ट है जो फूड को इंजेक्ट करने में मदद करता है। द बक्कल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज ऑल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज द माउथ। जो बक्कल कैविटी जो माउथ के बिहाइंड प्रेजेंट होता है इज ऑल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज द माउथ। द बक्कल कैविटी एज टीथ एंड टंग। बक्कल कैविटी एज टीथ एंड टंग, दांत और जीभ। The set of teeth help in the mastication of food. Teeth, what is the work of teeth? Teeth का काम क्या है? Teeth का काम है फूड को मिलाना, चबाना। The tongue is taste. टंग का काम क्या है? टेस्ट करना। Bud on it. The helps in the tasting of food. टंग क्या काम करता है? फूड को टेस्ट करने में। The salivary glands opens also the buccal cavity and for saliva, which initiate the process of digestion. Then we will discuss about teeth. Teeth are hard. Teeth hard होता है, present in the buccal cavity. Teeth are present in the buccal cavity which are hard. They helps us to cut, shears, काटने में, चीरने में, masticate मिलाने में फूड को। The vertical section of teeth shows 4 layers, that is enamel, dentine, cement and dental form. Enamel is outermost. Enamel का सबसे बारी portion है, that is shiny, highly mineralized and hard part of the human beings. Which is the hard part of human beings in teeth, that is enamel. याद रखिएगा ये। Dentine makes the bulk of the tooth and contains 70% inorganic salt. Cement is present at the lining of tooth and bony socket. The dental form is the central soft part of a tooth, contain nerve ending and blood, limbs, vessels along the connective tissue. There are 4 types of teeth in human, that is incisor. teeth 4 प्रकार के होते हैं, that is incisor, canines, molars and premolars, which are specific nutrition. There are 4 types of teeth.
you must know, that is incisors and canines, molar and premolar. इंसीजर कट द फूड, इंसीजर का काम क्या है, फूड को कटिंग करने में. कैनाइन का काम क्या है, फूड को तीरने में. वाइल मोलर एंड प्रीमोलर करस इट, मिलाने का. देखिए दांत का बात करते हैं, दैट इज आउटर पार्ट क्रोन होता है, जो कि आड पोर्शन होता है क्रोन. उसके बाद रूट हो गया. अब बात करते हैं ओसोफेगस एंड स्टोमक के बारे में. ओसोफेगस, अब बात करते हैं ओसोफेगस. दे आल्सो फूड पासेज इन द ओसोफेगस. इट इज मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो 25 सेंटीमीटर लंबाई होता है. एक्सपेंशन बेलो ओपनिंग एट द इच एंड. इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड. ओसोफेगस का फंक्शन क्या है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना है और फूड और फ्लूइड को दोनों को ट्रांसपोर्ट करना. बीइंग swallowed after the mouth to the stomach. Food is pushed on the पेरिस्लेटिक मूवमेंट. अब बात करते हैं स्टोमैक के बारे में. स्टोमैक, द स्टोमैक इज थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टोमैक जो है एक मोटा वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट्स रिसीव फूड फ्रॉम द ओसोफेगस. ये ओसोफेगस से फूड रिसीव करता है. एट 1 इंच एंड ओपन विथ द स्मॉल इंटेस्टाइन. 1 इंच ओसोफेगस से फूड लेता है, रिसीव करता है. उसके बाद दूसरा इंच स्मॉल इंटेस्टाइन तो ट्रांसफ़र करता है, खुला रहता है. 1 इंच से ओसोफेगस से फूड रिसीव करता है एंड दूसरा इंड स्टोमैक का स्मॉल इंटेस्टाइन में खुला रहता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमैक सीक्रेट्स मस्कस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl एंड डाइजेस्टिव जूस. फूड इज टर्न्ड इनटू अ सेमी सॉलिड मास इन द स्टोमैक इज कॉल्ड एंजाइम. सेमी सॉलिड मास जो फूड प्रेजेंट टर्न हो जाता है सेमी सॉलिड मास स्टोमैक में, उसी को क्या कहते हैं, काइम. एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड. फूड की मदद करने में कौन सा एंजाइम काम करता है, गैस्ट्रिक जूस काम. फूड को ब्रेक करने में कौन सा जूस काम करता है, गैस्ट्रिक जूस, जो एंजाइम का रूप. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ये हल्का प्रोटीन का डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो किल्स अनपूर्ण बैक्टीरिया. ये अनपूर्ण बैक्टीरिया तो किल करता है. मुकस सेक्रेट बाय द वॉल ऑफ द स्टोमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ. अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तब लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन. अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन बीइंग. इट इज द रीजन abdomen. It is the region which follows a stomach. Jejunum is the middle part and ileum is the jejunum middle part होता है. Ileum is the later region which continue further into the large intestine. The internal surface of the small intestine is folded into finger-like projection called villi. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली पोर्शन जो होती है वह इंटरफेस होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं, विली. फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे होता है उसको विली बोलते हैं. अब कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियास एंड लिवर ओपन द duodenum. Most of the chemical digestion and absorption takes place in the small intestine. ज़्यादातर most of the chemical digestion and absorption किसमें takes place स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग अबाउट 5 फीट लॉन्ग. लार्ज इंटेस्टाइन देखिए 5 फीट लॉन्ग है और स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट लॉन्ग.
It's the two region, colon और rectum. इसका दो रीजन, दैट इज कॉलन एंड रेक्टन. कॉलन अबाउट 1.5 मीटर, रेक्टन 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, वो भी एडल्ट में. द रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलियम कॉल्ड कॉलन, while the last part is called the rectum. लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? रेक्टम. colon has three region as ascending colon, transverse colon and descending colon. colon has three region. colon का तीन regions, that is ascending colons, transverse colon and descending colon. At the base of ascending colon, a small finger like outgrowth is seen is called appendix. दो स्मॉल ascending colon के अनुसार जो स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होता है उसको अपेंडिक्स बोलते हैं. इट आउट मैनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू डाइजेशन ऑफ फूड. इट आउटसाइड लार्ज इंटेस्टाइन आउटसाइड मैनी यूजफुल बैक्टीरिया दैट रिक्वायर डाइजेशन ऑफ फूड. फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत सारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जो पाए जाते. रेक्टम ओपन्स टू आउटसाइड बाय एनस. रेक्टम एनस में आउटसाइड ओपन होते हैं. द एनस एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉल एंड द एनस एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पेक्टर. बट स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये वाला पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लमसम 20 फीट, ये सब देख 20 फीट लॉन्ग होता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये 5 फीट लॉन्ग होते हैं. अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का बात करते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प द डाइजेशन ऑफ. डाइजेस्टिव ग्लैंड विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. जैसे सेलेब्री ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज आर द फ्यू टू कुछ नाम है जैसे कि सेलेब्री ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज. सेलेब्री ग्लैंड सीक्रेट सेलिवा. सेलेब्री ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? सेलिवा विच इनिशिएट डाइजेशन इन द माउथ. जो फूड को डाइजेस्ट करने में इनिशिएट करता है सेलेब्री ग्लैंड. विच क्या सेलेब्री ग्लैंड सीक्रेट क्या? सेलिवा. सेलिवा क्या करता है? फूड को डाइजेशन करने में इनिशिएट कर देता है माउथ में. गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट ऑफ द स्टोमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक. गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ द स्टोमक. स्टोमक के वॉल प्रेजेंट होता है. वो क्या सीक्रेट करता है? HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन. द लिवर सीक्रेट बाइल while stored in the gallbladder. लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल विच stored in the gallbladder. बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. बाइल क्या में हेल्प करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में. द पेनक्रियाज सीक्रेट मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम. पेनक्रियाज आर सीक्रेट so many digestive enzymes and its secretion is called pancreatic juice. पेनक्रियाटिक जूस भी डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेस्ट करने में मदद हेल्प करता है. पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस. देखिए सेलेब्री ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? सेलेवा. गैस्ट्रिक प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉल ऑफ द स्टोमक. लिवर बाइल विथ स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. अब पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूस. एंजाइम लाइक ट्रैप्सिन, कैमोट्रैप्सिन, लेफ्ट एमाइलेज आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज जूस. पेनक्रियाटिक जूस में क्या सब प्रेजेंट होता है? कौन सब एंजाइम? जैसे ट्रैप्सिन हो गया, कैमोट्रैप्सिन हो गया, लेफेज हो गया, एमाइलेज हो गया. ये सब प्रेजेंट कहाँ होता है? पेनक्रियाटिक जूस में. पेनक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट करता है? पेनक्रियाज. ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं पेनक्रियाज. पेनक्रियाज इज लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक इन द वुमेन.
पेनक्रियाज क्या होता है, एक लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड बिहाइंड द स्टोमक होता है, पर इट इज़ वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड में बहुत मेजर रोल करता है। इज ऑफ फिक्स नेचर, दैट इज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। As an endocrine organ, it secretes two hormones called insulin and glucagon. इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन, इंडोक्राइन ऑर्गन दो हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम क्या है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजोन। इंसुलिन एंड ग्लाइकोजोन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब कहाँ बात कर रहे थे, इंडोक्राइन ऑर्गन। अब फिर से बात करते हैं पेनक्रियाज, डिस्टर्बेंस कुछ हो गई थी। फिर से बात करते हैं पेनक्रियाज के। पेनक्रियाज इज अ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक इन ह्यूमन्स। इट इज़ वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये बहुत मेजर रोल करता है। एंड इज ऑफ फिक्स नेचर, दैट इज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एज एन इंडोक्राइन ऑर्गन इट सीक्रेट टू हार्मोन। इंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में पेनक्रियाज दो ग्लैंड सीक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजोन विच मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन और ग्लाइकोजन क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में जो हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज दो तरह का हार्मोन सीक्रेट, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। इंसुलिन और ग्लाइकोजन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, बात करते हैं आप एक्सोक्राइन ग्लैंड। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस विच इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम से बात करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट बाय द पेनक्रियाज विच इंक्लूड ट्राइपेसिन, chemotrypsin and protease which digests protein. It also includes amylase which digests the stomach content of the food. Pancreatic lipase are the pancreatic enzyme that help in the digestion of food. आप देखते हैं ये हो गया गॉल ब्लैडर। अब ये हो गया टूबुल्स, ये हो गया टूबुल्स। और पेनक्रिएटिक डक्ट यहाँ पे हो गया पेनक्रिएटिक डक्ट। अब बात करते हैं ओलोजोइक न्यूट्रिशन। ओलोजोइक न्यूट्रिशन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक्स देयर फूड एज ए होल इज कॉल्ड ओलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं इन ओलोजोइक न्यूट्रिशन फूड फोचेस थ्रू 5 स्टेज, दैट इज ओलोजोइक फूड फोचेस 5 स्टेज, दैट इज इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। ओलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप में होता है, दैट इज इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। आप फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बात करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बात करते हैं। ओलोजोइक न्यूट्रिशन में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द बक्कल कैविटी विच teeth masticate the food, saliva get mixed, it turned into the bolus. Digestion of stomach. Digestion of starts in the buccal cavity itself with the action of salivary amylase present in the saliva. Saliva में salivary amylase present होता है। Salivary amylase convert starch into maltose. स्टार्च तो माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, सिलेवरी एमिलेज। इन द स्टोमक ड्यूरिंग द फूड टेक्स ड्यू टू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चरिंग ऑफ फूड। इन द स्टोमक चरिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस ड्यू टू द मस्कुलर। स्टोमक में फूड का चरिंग होना वह किसके कारण होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण होता है। It breaks down the food into the simpler substance.
वह फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टोमक विथ द एक्शन ऑफ पेप्सिन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टोमक। स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन किसके एक्शन के थ्रू होता है? पेप्सिन के थ्रू। पेप्सिन आर द ब्रोकन डाउन इन द स्मॉलर फ्रेगमेंट कॉल्ड पेप्टाइड बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन। They work after mixing with gastric juice turns into the fine soluble form as the chyme. Chyme enters into the small intestine which completes digestion. Chyme कहाँ enters करता है? small जो digestion complete करता है. Takes place due to the action of various enzymes present in the pancreas that bile in the style juice. The digested food is completely absorbed by the villi. डाइजेस्टिव फूड किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? विली के द्वारा। एंड माइक्रोविली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विली और माइक्रोविली का स्मॉल इंटेस्टाइन द विली और माइक्रोविली के द्वारा डाइजेस्टिव फूड ऑब्जर्व किया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड दैट इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्ट फूड बच जाता है वह कहाँ चले जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। That colons is the responsible for absorption of water and salt where rectum store the undigested and temporarily before defecation. अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन अदर एनिमल। वुमेन का डाइजेस्टिव सिस्टम वुमेन का बात कर लिया, अब अदर एनिमल का बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट एनिमल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड ऑन द फूड हैबिट ऑफ द एनिमल। एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल का फूड हैबिट पर निर्भर करता है। एलिमेंट्री कैनाल इन आर्बीवोरस इज लॉन्ग एज द सेलुलर कंटेंट प्लांट बेस्ड डाइट टेक्स प्लेस लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। आर्बीवोरस में एनिमल कैनाल लॉन्ग होता है। ऑन द अदर एंड एलिमेंट्री कैनाल of carnivorous is comparatively shorter because meat get digested faster. वही कार्निवोरस में एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है क्योंकि मीट गेट डाइजेस्टेड फास्टर। एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बात करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द एलिमेंट्री कैनाल इन वुमेन approximately 3 feet 9 meter long. It starts with the mouth and in the anus. Between this opening and the alimentary canal is the tube of varying diameter. Esophagus, stomach, small intestine divided into 3 regions as abdomen, jejunum, ileum, जो हम लोग बात कर चुके हैं। Large intestine having 2 regions as colon, rectum are the part of alimentary canal. अब salivary gland, pancreas and liver act as a major digestive gland. Gland present in the wall of a stomach. Gland कहाँ present होता है? Wall of the stomach and a small intestine also contribute toward the digestive food. Role of HCl. HCl का रोल क्या है? HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl का रोल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डाइजेशन। डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? कौन सा ग्लैंड के द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। प्रेजेंट इन इस वाल। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज यूजुअली बिटवीन 1. ये याद रखिएगा 1.5 to 3.5। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड का हो जाता है 1.5 to 3.5। द एसिड सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। एसिड कुछ फंक्शन जो हम लोग देखते, कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंड pyridine into the active pepsin and renin respectively. Provide acidic medium for protein digestion. HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम करता है प्रोटीन डाइजेशन में। HCl किल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, इंटर थ्रू फूड एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचाता है। प्रिवेंट्स पुट्रेफेक्शन
of food in a stomach. A thick layer of mucus secreted by mucous glands of the stomach prevents it from the action of gastric acid. Excess acid damages gastric mucosa and cause gastric and ulcer. ये इसमें भी काम करता है HCl. Salivary gland का बात करते हैं. Now we will discuss about salivary gland. Salivary glands are the exocrine gland. Salivary gland क्या है? एक exocrine gland है that secretes saliva. Salivary gland क्या secrete करता है? आप लोग को बता चुका हूँ. Salivary gland secrete करता है saliva through a system of duct. It is poured in the mouth. Salivary gland saliva secrete कहाँ करता है? माउथ में, जो कि फूड का डाइजेस्ट करने का इनिशिएट कर देता है. फूड का डाइजेस्ट कर प्रक्रिया इनिशिएट हो जाता है. इन वुमेन विद 3 मेजर salivary glands present in the parotid, submandibular and sublingual. In healthy individual, 0.5 to 1.5 liter of saliva produced per day. पर डे सलीवा कितना प्रोड्यूस हो जाता है? 0.5 to 1.5 लीटर. 0.5 to 1.5 लीटर सलीवा पर डे प्रोड्यूस होता है. Saliva serves the following functions in the oral cavity. It lubricates and protects the soft hard tissue of the oral cavity. Saliva का काम है. It also gives protection from dental caries. Saliva dental में भी कुछ प्रॉब्लम होने से बचाता है. Saliva prevents microbial growth to the oral cavity. Oral cavity में माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ से बचाता है, प्रिवेंट करता है. Saliva can encourage soft tissue repair by decreasing clotting time and increasing wound contraction. Saliva contains the enzyme amylase that hydrolyzes starch into maltose dextrin, and saliva allows digestion to occur before the food reaches the stomach. अब बात saliva acts as the solvent in the which saliva acts as a solvent in which solid particle can dissolve it, enter the taste bud located in the tongue. Saliva solvent particle को भी डाइजेस्ट करने में काम करता है. बात करते हैं फिगर में देख रहे हैं आप लोग. ये हो गया सबलिंगुअल सलिवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल डक्ट, पेरोटिक डक्ट, पेरोटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर डक्ट, सबमैंडिबुलर सलिवरी ग्लैंड. तो आप लोग आज न्यूट्रिशन इन वुमेन बीन जान लिए. न्यूट्रिशन इन वुमेन बीन में सारा चीज़ न्यूट्रिशन आज आपका समाप्त होता है. तो जो भी दिक्कत होगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.